I'm going to give you the advantage right now. Are you ready to get advantage? Yes. Okay. So you can eliminate 5 threats. Who's going to be eliminated? Wow! You have a very great advantage. Oh, don't choose me. Please don't choose me. Okay, guys, listen to me. Be serious, everyone. You can eliminate 5 friends, and you are safe this week. And you can also choose the one person with you that he would be a captain and you. Only one person you have to choose to become a captain. He will play with you. To whom you want to choose? Become a captain. With you. With you. To whom you want to choose. And that person become captain, he is not going to be out. He or she would be safe for this week. Yes, who will be the captain? Select any of them. You can also choose me. Who say fast, you have to say firstly to whom you want to choose and a captain. Flying captain. Any one of them. It's kept. She's kept. Okay. And who's going to become captain? They can sit here on that chair. Okay. And he or she can be safe this week. Now this is the time to eliminate 5 friends. Thank you. Choose fast, show your signs. That. Imran. Side. Shahid. And third and fourth and fifth. I will let it out. Too fast. Too fast. यहाँ पे सारे अपने अपनों को तो आपकी बताइए so much you have paid your 100% attention towards me. So, with whom would you like to save? I want to ask again, whom would you like to save? There are 5 students. Whom would you like to save? Yes. I saved Zoya or Rahimi. Zoya Rahimi. Zoya Rahimi. Speak. Speak. Name. Rahim. I don't know. Rahim. Rahim and Shahid. Ashiya and Imdad. Ashiya and Imdad. इमदाद एंड शाह तो आशिया इमदाद Ashiya and Imdad. Yes. Okay. Finally, Imdad has got more than that. Yes. So, I would like to say with your thanks that you will have to have a seat, please. Thank you so much. Finally, you have a huge combo to be there. So, yes. People, by the virtue of you got selected Rahimin again. So, he would be here again. Thank you so much and huge congo to Rahimin. I will take it. Hello everyone. So Imran and Rahimin, you guys are safe. Have a huge hand for them. And Aslam, Shahid and Zoya. From you, tomorrow will go anyone. Be ready, there will be any talk. If someone lose that from 3, someone will go.
So have a good luck, guys. We'll make tomorrow have a huge important that now. मारो इसको इस शख्स को पीटो इतना पीटो इसको बोल मारो गुड इवनिंग बैठे। कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। आवाज़ आ रही है मेरी? कम तो नहीं है मतलब? अच्छा, आवाज़ आ रही है? बहुत तेज़ आ रही है, स्लो आ रही है? तेज़ आ रही है। सब आ गए ये अभी आने बाकी हैं? जी ओके 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 ओके। अच्छा, आप अपना सबसे पहले इंट्रो कराएं, अपना नाम बताएं और आप क्या पढ़ रहे हैं वो बताएं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुरू करें। So my name is Maimuna Mansoori and I have completed my graduation and now I am फ्रॉम दिस साइड आर्ट्स? from arts history honors. ओके Yeah. गुड। आप बताएं। My name is Zoya and I have given my examinations of 12th from CBSE board from arts history. गुड। And my name is Sakina and I read and now I am third year student from Matasundri College History Department from arts. ओके गुड। My name is Karishma and I am completed my 10th examination. सॉरी 12th 12th एग्जामिनेशन? 10th एग्जामिनेशन। ओके from my side. ओके 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 My name is Shahid. I am in 12th class. ओके। Art side. My name is Arshad. I study in BCom from IGNOU in Siamla. सोल SOL से? IGNOU. इग्नू से? ओके। आप? My name is Shah. I just gave my 10th class exam. ओके जी, आप बताएं। My name is Nadia Sheikh. I am first in class from CBSE. गुड। My name is Sally Kevin. I am first 10th exam. My name is Sabra and I am in second class. गुड। My name is Asya Pervin. I have completed my 10th examination from CBSE. गुड। बैठ, उनको भी बुला लो ना अंदर। Hello everyone, how are you all? So here is our new guest and I think some person know him about and his name is Faizan Sheikh. By the way, he is an advocate also and he is a great motivational speaker. Now you will hand over. So Mr. Faizan Sheikh, I just want to ask to you, please tell me how is this place? Do you like this place? ऑफ कोर्स, Do you like it? बिल्कुल। Okay, so can you tell me something about this place? क्या कहें, अल्फाज कम है। Okay, okay. And the new, our contestant SH and can you please stand? Come on the stage. Look at here. How are you guys? Are you guys fine? Okay, welcome to Salman Academy. Do you like the place? Yes. Okay. This is your starting. Have a seat and take classes of first answer. Have a great take. अच्छा, जहाँ तक आवाज़ आ रही है, जहाँ तक अभी आपका इंट्रो कराया गया है तो कम से कम दर्जे की जो क्लास है वो 10th क्लास है और बाकी ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं लोग, अब BCom भी, BA भी, ठीक है। अच्छा है, देखिए आवाज़ आ रही है ना आपको? आवाज़ क्लियर है ना? हाँ। दरअसल यार ये मल्टीमीडिया और फ़ोन वगैरह इन सब चीज़ों की आदत नहीं है। मेरा नाम शेख फैज़ान ख़ान है। मैंने BCom किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और BA किया है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से और मैंने D.Ed किया है DHH
अली अकबर जंग यूनिवर्सिटी से, हालांकि वो एक संस्था है, अभी एक यूनिवर्सिटी जल्दी बन जाएगी। SCSR कॉलेज था हमारा। उसके बाद मैंने टेट क्वालिफाई किया, हरियाणा टेट क्वालिफाई किया, और जो है अभी मैं LLB कंप्लीट लगभग हो गई है, और MA साइकोलॉजी कर रहा हूँ, और गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रहा हूँ, TGT और PRT दोनों, जिसमें केंद्रीय विद्यालय आते हैं, KVS जिसे बोलते हैं, और DSS। आई एम ए स्पेशल एजुकेटर ऑल्सो, जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से चलता है। चलिए खैर, आपसे 10 मिनट की गुफ्तगू थी, 10 मिनट की आपसे बात करनी है। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं, ठीक है, एक मामूली सा एक लड़का हूँ, ठीक है। मुझसे, मेरे से कोई ऐसी बात आपके जहन में उतर जाए जिससे आपका भी फ़ायदा हो, मेरा भी फ़ायदा हो। मैं कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ, बहुत मामूली सा इंसान। देखिए, सबसे पहली जो नींव रखी जाती है ना किसी भी चीज़ की, वो है मेहनत। सबसे पहली नींव है मेहनत। हम क्या करते हैं, समंदर के किनारे से खड़े होकर समंदर की गहराई का अंदाज़ा लगाते हैं। हाँ भाई, ये इतनी हो सकती है, ये इतनी हो सकती है, ये इतनी हो सकती है। जब तक आप उसमें जाकर नहीं देखेंगे, जब तक किसी चीज़ में आप रिस्क लेकर नहीं देखेंगे, तब तक किसी चीज़ को आप अचीव नहीं कर सकते। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूँ। और हम खड़े होकर ही बातें बनाते रहेंगे ना, वो चीज़ कभी हासिल होगी। देखो, दो ही चीज़ हो सकती हैं, या तो आप फेल हो जाओगे, फेल हो गए तो आप किसी को एडवाइस देने वाले बन जाओगे, बहुत बड़ा तजुर्बा ले लोगे, आप आगे बढ़ जाओगे, आपको पता लग जाएगा इस गली के अंदर गड्ढा है, वो दूसरों को पता नहीं होगा, आपको पता होगा, तो आपसे लोग फ़ायदा उठाएंगे। या फिर आप कोई चीज़ पालोगे। IAS ऑफिसर होते हैं ना, UPSC एग्ज़ाम क्लियर करके जो है, पहले प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू करके फिर इंसान बनता है। वैकेंसीज कितनी आती हैं? हद से हद 900, 950, 940, 900, 800, कभी कभी तो 300, 400 भी होती हैं। एप्लीकेशन आते हैं कम से कम 15 लाख, 15 लाख भरने वाले होते हैं फॉर्म। बंदे कितने? सिर्फ 900। अब लोग ये सोचें कि भाई मैं क्यों एग्ज़ाम दूँ, इतने सारे तो लोग बैठ रहे हैं और एक से एक धुरंधर बैठेगा। हालांकि UPSC का एग्ज़ाम है, भारत का बहुत बड़ा बोर्ड है, आप सबको पता है। 1923 में इसकी स्थापना की गई थी, इस्टेब्लिश किया गया था इसको। उससे पहले जो है ये सिर्फ एक सर्विस थी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस थी, फिर एक बोर्ड के द्वारा इसको एग्ज़ाम को बनाया गया। अब हम सोचें कि हाँ भाई इतने सारे लोग बैठ रहे हैं, हम क्यों करें? नहीं भाई, रिस्क लेना पड़ेगा। और यही चीज़ शुरुती सोच ली थी तो आज वो सबसे हाईएस्ट मार्क लेके आते हैं। हाँ बिल्कुल, यही बात है। और इसी तरीके से अगर सफ़ीन हसन सोच लेते, मैं तो बहुत कम उम्र में हूँ, 21-22 साल की उम्र है, और IPS ऑफिसर बन गए। अगर वही सोच कर बैठ जाए, सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होता है ना। हम यहाँ बैठे हैं, अभी मेरी बातें बड़ी मीठी मीठी लग रही है ना, मेरे को भी बहुत मज़ा आ रहा है, तुम्हें भी सुनने में बहुत मज़ा आ रहा है। हालांकि ये डेस्टिनेशन नहीं है, एक ये इंतज़ाम है। क्या कहलाता है? इंतज़ाम है, ठीक है। जैसे टेंट वेंट लगाते हैं, आपके संडे लगाया था उस दिन टेंट वगैरह, ठीक है। मैं आ नहीं पाया था, मेरी क्लासेस होती हैं, कंटिन्यूसली क्लासेस होती हैं। अच्छा, मैं क्लासेस छोड़ भी नहीं सकता, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है उनका सितंबर में, तो मैं उनको क्लास देता हूँ GS की। और जो लॉ के स्टूडेंट हैं मेरे, उनका भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, CCS वालों को, उनको ही पढ़ाना होता है, तो मैं उनको छोड़ नहीं सकता, इसलिए तो मैं आ नहीं पाया, उसके लिए सॉरी। बाकी ये है कि एक इंतज़ाम होता है ना, टेंट वेंट लगा के, तो ये आप क्या कर रहे हैं? इंतज़ाम ही तो कर रहे हैं। असल क्या है? वो है मेहनत। बिना फ़ोन के, कहाँ है फ़ोन? वो ये रहा। आपके तो फ़ोन जब्त हो गए, मेरा है यहाँ पे। ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है। क्या है? सबसे ख़तरनाक चीज़ है। हम इसका यूज़ अच्छा करना नहीं जानते, ठीक है। जो बड़े लोग हैं, जो किसी ओहदेदारान हैं, मैं अपना आपको नहीं कह रहा, मैं तो तुम जैसा ही लड़का हूँ, ठीक है। जो ओहदेदारान हैं वो इसको इस्तेमाल करना अच्छे से जानते हैं, कितना इस्तेमाल करते हैं इसको। इसमें अपडेट देखते हैं, करंट अफेयर देखते हैं, ठीक है। अभी शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा, हालांकि आप सबकी उम्र अच्छी है। बताएं ज़रा मुझे, अभी जो जुलाई में इलेक्शन हो रहे हैं अभी प्रेसिडेंट के लिए, तो NDA के लिए जो तरफ से जो कैंडिडेट पेश किया गया है वो कौन है? एक को पता है भाई, द्रौपदी मुर्मू। वो NDA की कैंडिडेट हैं और होप सो वही बनेंगी राष्ट्रपति। वो कहाँ से बिलोंग करती हैं बताएं? साउथ अमेरिका, साउथ इंडिया से बिलोंग करती हैं। और साउथ इंडिया से बिलोंग करती हैं। ये क्या बंद हो गया क्या?
ओडिशा 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 कहते हैं उसको। तो ओडिशा से बिलोंग करती हैं और किस ट्राइब से हैं वो? संथाल, संथाली भी बोलते हैं उनको। तो ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी? ये हमें अपडेट मिलेंगी या तो न्यूज़पेपर से। मतलब न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिया है ना हम सब ने, है ना? अगर न्यूज़पेपर पढ़ने की इच्छा नहीं है आपके अंदर तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। फ़ोन के ज़रिए से पढ़ाइयाँ नहीं होती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं इस पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाता हूँ, ठीक है? फ़ोन से कभी भी पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई कहाँ से होती है? किताबों से होती है, ठीक है ना? कलम से होती है, किताबों से होती है। बात आपको समझ में आ रही है? चलो आ गया मुझे पकड़ना। वो हिमेश रेशमिया को आता ना, वो ऐसे करके गाना गाता था। हमें तो शौक़ नहीं है इस चीज़ का। एक जगह पे मैं गया था तो वहाँ पर बहुत सारे तकरीबन 150 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने भी माइक वाइक का इंतज़ाम करा। अब वो माइक लगा रहा है, मैंने कहा मुझे माइक मत लगाओ, मेरी आवाज़ बहुत तेज़ है। मैंने बहुत तेज़ आवाज़ में जो 100 स्टूडेंट्स तक वहाँ तक आखिरी तक आवाज़ जा रही थी। चलिए खैर, तो मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? आप 10th में हैं, 11th में हैं और कुछ कर रहे हैं, ये सफिशिएंट नहीं है। ग्रेजुएशन को या 11th 12th को, BA BCom को आप समझ रहे हैं कि ये स्टडी है आपकी, तो ये आपका बहुत बड़ा गुमान है और आप एक भ्रम में जी रहे हैं। ये सिर्फ आपको खड़ा करने के लिए है कि आप एबल हो चुके हैं आगे की पढ़ाई करने में। समझ में आ रहे हैं? आगे की पढ़ाई क्या होती है भाई? आप IAS ऑफिसर बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट टीचर बन रहे हैं, आप प्रोफेसर बन रहे हैं, जज बन रहे हैं। ये होती है स्टडी, ये होता है प्लेटफॉर्म। यहाँ तक जाना होता है, रुकना वहाँ पर भी नहीं होता। तुमने देखा है कभी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, फिर हाई कोर्ट के जज बनते हैं, हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, फिर वो CJI बनने की सोचते हैं। क्या? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ, कौन है इस वक्त? भूल गए? याद है या मतलब भूल गए? भूल गए? NV रमना। कौन? NV रमना। याद क्या करो, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये हमें अखबारों से और किताबों से मिलेंगी, फ़ोन से नहीं मिलेगी। तो कोशिश करें फ़ोनों से अपनी दूरी रखें, अपने टारगेट बनाएं, अच्छे लोगों को अपना दोस्त बनाएं, ठीक है? देखो ये लिखा है ना कि काम एंड स्टडी हार्ड एंड बिकम एन IAS ऑफिसर। इसको IAS ऑफिसर को इरेज करके, इसको डिलीट करके आप कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं, बट ऊपर वाली लाइन सेम रहेगी कि काम स्टडी हार्ड, ठीक है ना? जो लोग ये कहते हैं ना कि स्मार्ट स्टडी करो, मुझे तो बेवकूफ़ लगते हैं। कोई स्मार्ट स्टडी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हार्ड वर्क होता है। सिर्फ एक कॉट है उसमें अरबी में, मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है उसको मिलता है, ऐसा है ना? आप कम से कम अगर आप 8 घंटे अपनी स्टडी को नहीं दे रहे, मैं आपके शायद तीसरी बार आया हूँ, मैंने तीसरी बार ये बात बोल रहा हूँ, जो 8 घंटे अपनी स्टडी को नहीं दे रहे वो भूल जाएं कि वो किसी मतलब किसी चीज़ को अचीव कर लेंगे। ख्वाबों में है वो, सिर्फ किस में? ख्वाबों में जी रहे हैं, तो उनको ख्वाबों में ही रहने दो, ठीक है ना? एक आदमी कह रहा है ना मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ और दोस्तों में भी जा रहा है, घूम फिर के भी आ रहा है, मोबाइल में चला रहा है, ठीक है? इंस्टा पे 3 ID है, एक तो अपने नाम से है, एक एंजल प्रिया करके, ठीक है? तो ये लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। बस समझ में आ रही है? तो आपको थोड़ा सा आप मैच्योर और आपको सीरियस होना पड़ेगा। मेरे यहाँ आने का मोटिव, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी और बहुत सारे लोगों को मोटिवेट इसलिए करता हूँ क्योंकि देखो यार, इस वक्त हमारे भारत को ज़रूरत है आप जैसे लोगों की, ठीक है ना? माहौल ख़राब होता जा रहा है। जब हम एजुकेशन की तरफ जाएंगे तो माहौल शायद अच्छा बन जाए। तो आप लोग ही बेस कम करो, ठीक है ना? बात समझ में आई? तीसरी बात, ये जो एकेडमी होती है ना, ये एकेडमीज़ और कोचिंग्स और ये ट्यूशन्स जो होते हैं, ये सिर्फ आपको पुश करने के लिए फैसिलिटेटर कहलाया जाता है टीचर। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 टीचर को फैसिलिटेटर बोलता है। क्या बोलता है? फैसिलिटेटर। हिंदी में बोले तो सुगम करता। क्या? सुगम करता। सुगम करता किसे कहते हैं? फैसिलिटेटर उसे कहते हैं जो फैसिलिटी देता है आपको। मेहनत करना तो आपके ही हाथ में है ना? कोई टीचर तुम्हें आगे जाके हाथ पकड़ के UPSC में कह देगा हाँ भैया मेरा स्टूडेंट है, लाओ उसको पास कर दो, आपके हाथ में होगा वो क्या करेगा आपके लिए? सुगम करेगा आपके लिए, फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा वो आपको, ठीक है ना? आप जिस तरीके से आर्टिकल 1 से लेकर 368 तक तो याद नहीं कर पाओगे ना, अमेंडमेंट कर पाओगे, ठीक है ना? या जो है मैंने एक एग्जाम्पल
बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत सारे होते हैं, वो तो नहीं कर पाएंगे सॉल्व। अब क्या करना होगा, जो टीचर होता है वो फैसिलिटेट करके दे देता है आपको। क्या करता है? फैसिलिटेट करके दे देगा। जो मेन चीजें हैं आपको सहारा लगा देगा, है ना। वो कह देगा कि भाई आर्टिकल 1 to 4 तक पार्ट 1 कहलाया जाता है और इसके अंदर किसका जिक्र किया गया है। कौन है पोल साइंस का स्टूडेंट? कोई तो होगा। 12th किसने करी है आर्ट्स से? यह जो कोई कर रहा है 11th 12th, आप बताओ। नहीं पता। देखो देखो दो चीजें होती हैं, एक तो होती है प्रैक्टिस, एक होती है ड्रिल, एक होती है şeytuni kerdی نزدیک من نیا تو